নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্স লৈ ষ্টুডিঅত মই মৌসুমী শৰ্মা বৰুৱা আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আজি পুনৰ মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিল এনএলএফবিৰ 22 নেতা কেডাৰ কুকৰাঝাৰৰ ভূমকাৰ শিঙিমাৰীত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিল নেতা কেডাৰসকল এনএলএফবিৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ বি জাংখ্ৰিং খাঙৰ নেতৃত্বত আহিছে দলটো কুকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ আহে 22 নেতা কেডাৰক পুনৰবাৰ জনাইছো আজি পুনৰ মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিল এনএলএফবিৰ 22 নেতা কেডাৰ কুকৰাঝাৰৰ ভূমকাৰ শিঙিমাৰীত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিল নেতা কেডাৰসকল এনএলএফবিৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ বি জাংখ্ৰিং খাঙৰ নেতৃত্বত আহিছে দলটো কুকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ আহে 22 নেতা কেডাৰক কৰিবলৈ আহিছো আমি ভাবো যে গোটাইখিনি প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰি আমি ভাল এটা আলোচনাৰ দিশে আগবাঢ়ি যাম যিমানখিনি আছে সিমানখিনি আহিব জাংখ্ৰি ঠাই তেখেতে আহিব মূল দাবী এতিয়ালৈকে আমি চাৰ্টাৰত যিমান চৰকাৰক দিয়া নাই তো আমি গোটাইখিনি লিডাৰ্ছ কেডাৰ্ছ গোটাইখিনিক আমি ডিজিনেটেড কেম্পত আনি কিনি আমি গোটাই একেলগে কথা পাতি চৰকাৰক নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল নামৰূপ সাৰ কাৰখানাক লৈ পিএমএৰে আলোচনা অসম মিজোৰাম সীমা সমস্যাক লৈ গৃহমন্ত্ৰীৰে আলোচনা নিশা অসমৰ সাংসদসকলৰ সৈতে বৈঠক 16 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে আন্তঃজিলা যাতায়াত যুগ্ম অযুগ্ম নম্বৰেৰে আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ইংগিত 15 আগষ্টৰ পিছত 6 বজালৈ দোকান পোহাৰ খোলাৰ সম্ভাৱনা 4টা দিশেৰে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব সীমা সমস্যা বিবদমান অঞ্চলৰ লোকসকলৰ ইচ্ছা ইতিহাসৰ তথ্যৰ আধাৰ প্ৰশাসনিক সা সুবিধা যাতায়াতৰ সুবিধাৰ ওপৰতো হ'ব পৰ্যালোচনা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ সম্ভাৱনা বড়োভূমিত অন্ত পৰিছে উগ্ৰপন্থী সমস্যা ভেকচিনক লৈও কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰে আলোচনা লাভলীনা বৰগোহাঁইক আদৰিবলৈ সাজু চৰকাৰ এইবাৰ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰোঁতে দুটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছিলো এটা হ'ল নামৰূপ ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ৰিভাইটেলাইজেশ্যন আমাৰ যিটো নামৰূপ ফাৰ্টিলাইজাৰত বিশেষকৈ যিটো থাৰ্ড ইউনিট সেইটো খুব কষ্টত চলি আছে বহুতখিনি ৰিপেয়াৰিঙৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যিটো প্ৰস্তাৱিত চতুৰ্থ প্ৰকল্প সেইটোৰ কাম এতিয়াও বিভিন্ন জটিলতাৰ মাজত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কৈছিলে যে এতিয়া ইউৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নেনো ইউৰিয়া যিটো অকল স্প্ৰে কৰিলে হ'ল বস্তাত নিব নালাগে একেবাৰে সৰু বটল তাত আমি পানী মিক্স কৰি স্প্ৰে কৰি দিলে ইউৰিয়াৰ এফেক্ট পায় তেখেতে মোক কৈছিলে যে নামৰূপ খবৰ আৰু আছে এইখিনিতে সময় হৈছে খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ चल शुरू हो जा my turn कर दे सब कुछ on track strong है my turn flexible है my turn बड़ा समझदार নির্মাণৰ মানদণ্ড my turn 18 network $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66. Swag चल शुरू हो जा my turn कर दे सब कुछ on track strong है my turn flexible है my turn बड़ा समझदार নির্মাণর মানদণ্ড my 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो सांकेतिक भाषा में खबरों को आप तक पहुंचाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य कम आय वाले उन परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है जिन्हें PMUY के पहले चरण के तहत नहीं किया जा सका था शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर खुली बहस की अध्यक्षता कर रचा इतिहास। समुद्री सुरक्षा पर 5 मूल सिद्धांतों का दिया मंत्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव को किया स्वीकार। अमेरिका रूस ने की अंतर्राष्ट्रीय कानून की वकालत। संसद में जारी गतिरोध के बीच राज्यसभा में सरकार ने लिखित जवाब में दी पेगासस मामले पर जानकारी। रक्षा मंत्रालय ने कहा NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर। उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बिहार की कई नदियों में भी बढ़ा जलस्तर। राजस्थान और मध्य प्रदेश में राहत और बचाव कार्य जारी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु पैनल ने दी सख्त चेतावनी। कहा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक होने की वजह से दशकों तक जूझ सकते हैं जलवायु संकट से। अगले 20 वर्षों में कार्रवाई नहीं करने पर औसत वैश्विक तापमान संभवतः 1.5 डिग्री सेल्सियस को कर सकता है पार। भारत ने कहा विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन में त्वरित कटौती करने की है जरूरत। देश ने टोक्यो से लौटे भारतीय खिलाड़ियों के दल का किया स्वागत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के महामारी की चुनौती के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन पर दी बधाई। कहा प्रधानमंत्री की हौसला अफजाई से भारतीय ओलंपिक दल को मिला प्रोत्साहन। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ पहला रिफिल और हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। साथ ही इसमें नामांकन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी। उज्ज्वला 2.0 में प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वर्ष 2016 में शुरू किए गए उज्ज्वला योजना 1.0 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार कर इसमें 7 और श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया। साथ ही इसके लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। इस लक्ष्य को निर्धारित तिथि से 7 महीने पहले अगस्त 2019 में ही हासिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक खुली चर्चा की अध्यक्षता कर एक नया इतिहास रच दिया। इस तरह की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इस खुली बहस में समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 5 मूल सिद्धांतों का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित 5 सिद्धांतों को सुरक्षा परिषद ने स्वीकार कर लिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने समुद्री विवाद, आतंकवाद, समुद्री डकैती समेत दूसरी चुनौतियों के समाधान के लिए आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर दिया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने समुद्री सुरक्षा को लेकर विश्व के साथ 5 मूल सिद्धांत साझा किए। इस बैठक का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है। बता दें कि अगस्त के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की अध्यक्षता में एक वक्तव्य स्वीकार किया है, जिसमें 1982 के समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बने कानून की प्रधानता होगी। इसमें समुद्र में अवैध गतिविधियों को रोकने का कानूनी प्रारूप भी शामिल है। वक्तव्य में समुद्री सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया गया है। साथ ही इस सिलसिले में क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय संगठनों और अलग अलग देशों के द्वारा प्रयास को भी रेखांकित किया गया है। बयान में द्विपक्षीय या क्षेत्रीय समझौतों या व्यवस्थाओं सहित समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ पारस्परिक कानूनी सहायता का स्वागत किया गया है। समुद्री सुरक्षा के लिए संभावित कमियों और कमजोरियों की पहचान करके क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं और सूचनाओं को साझा करने पर बल दिया गया है। बयान में समुद्री डकैती और आतंकवादी गतिविधियों के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ समुद्री सुरक्षा के लिए सहयोग को मजबूत करना जरूरी बताया गया है। बयान में सीमा पार बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पेगासस और किसान कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच एक अहम जानकारी देते हुए सरकार ने उच्च सदन में जानकारी दी कि एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेन देन नहीं किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में ये अहम जानकारी दी है। ये जानकारी इसलिए अहम है कि पेगासस सॉफ्टवेयर इसी एनएसओ समूह का ही हिस्सा है। विपक्ष लगातार इस मामले में सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि उसने एनएसओ समूह से किसी तरह की कोई लेन देन नहीं की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अनुमति देने का फैसला किया है। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए अपने पासपोर्ट का पहचान पत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद वो टीकाकरण का समय प्राप्त कर सकेंगे। भारत में विशेष रूप से महानगरों में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रहते हैं। इस पहल से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की कोविड-19 से सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 35,499 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 39,686 रोगी ठीक हुए। भारत में वर्तमान में 4,02,188 सक्रिय मामले हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.26% हैं। रिकवरी दर वर्तमान में 97.40% है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से कम बनी हुई है। वर्तमान में ये 2.35% है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.59% है। ये पिछले 14 दिनों में 3% से कम है। देश में टीकाकरण अभियान अगस्त में तेज हो गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 51 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के कई इलाकों में बाढ़ की भयावह स्थिति से लोग बेहाल हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। काशी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी अब रिहायशी इलाकों में घुस गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। बिहार की कई नदियों में भी जलस्तर बढ़ा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन संबंधी पैनल ने विश्व को चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग अनियंत्रित होने के खतरनाक हद तक पहुंच गई है। पैनल का कहना है कि इसके लिए पूरी तरह से मानव जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट लिखने वाले एक प्रमुख जलवायु वैज्ञानिक पाओलो आर्टेक्सो ने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी ये परिस्थितियां धरती से भारी कीमत वसूल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पहले ही इतनी अधिक है, जिससे शताब्दियों के लिए नहीं तो कई दशकों के लिए तो निश्चित रूप से जलवायु संकट खड़ा हो सकता है। 3 माह बाद स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP26 में इस चुनौती से निपटने के लिए
और निर्णायक रणनीति बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना है। यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए तुरंत तेज और व्यापक कदम नहीं उठाए गए तो रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्ष के भीतर ही वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मीकरण सीमा को पार कर जाएगा। भारत ने जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल IPCC द्वारा जारी की गई छठी आकलन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान का स्वागत किया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में अनेक भारतीय वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया है। ये रिपोर्ट विकासशील देशों के लिए उत्सर्जन में भारी कटौती करने और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त डिकार्बोनाइजेशन करने का स्पष्ट आह्वान करती है। रिपोर्ट बताती है कि अनुमानित परिदृश्यों की सभी श्रेणियों में मानसून की वर्षा तेज होने की अपेक्षा है। भारी वर्षा की घटनाएं बढ़ने का अनुमान है। भारत इस बात पर गौर करता है कि बढ़ते तापमान से अधिक गर्म हवा और भारी वर्षा समेत मौसम संबंधी चरम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी। विकसित देशों ने वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से से कहीं अधिक ले लिया है। शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य अकेले हासिल करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सभी देशों के उत्सर्जन के शुद्ध शून्य होने से ही तापमान निर्धारित होता है। ये IPCC रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये भारत के इस रुख की पुष्टि करता है कि आज दुनिया जिस जलवायु संकट का सामना कर रही है वो अतीत में मिलकर किए गए उत्सर्जन का परिणाम है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं और वो अपने उत्सर्जन को आर्थिक विकास से अलग करने की राह पर है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने नई दिल्ली में आयोजित अभिनंदन समारोह में ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून मंत्री किरण रिजिजू, खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक सहित भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा मौजूद थे। स्वदेश वापस आई भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम पहलवान बजरंग पुनिया, रवि दहिया और नीरज चोपड़ा को प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने खिलाड़ियों की महामारी की चुनौती के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन पर दी बधाई और कहा प्रधानमंत्री की हौसला अफजाई से भारतीय ओलंपिक दल को प्रोत्साहन मिला। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।